हाँ जी. So I was telling you that we have studied about the drugs, their different types and the different sources of the drugs. We have already studied, and after that we have also studied that what impact do they create on the human body. That is, their CNS is getting effective, or what of the body parts are becoming effective. Basically, the brain, the CNS, that is most of the damage is created to it, and because of its misuse or the use that which we are doing, that is the drugs, they if they are used not in an appropriate manner, because हमने कल ये भी conclude किया था कि drugs as in the medicinal use तो important है कि कुछ एक drugs ऐसे होते हैं जो doctors खुद ही refer कर देते हैं कि ये as in the form of a medicine we have to take. That is, if we are taking certain drugs as in the form of the medicines, then they are particularly for a particular short period of time, है ना, and also with the proper content of its dosage. मतलब जो जितनी डोजेज हमें चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड हमारी बॉडी में, उतनी डोजेज के हिसाब से हमें वो ड्रग्स जो हैं वो खुद ही डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं. लेकिन अगर वो ड्रग्स को एज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन उतने ही लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर डे और टाइम ओनली we are taking those, then there are no problems, right? But when the person starts taking these particular drugs as in the form that they are taking it for their own, you can say, mental stability, coming out of the depression, relieving their stress, है ना, or the feeling of getting the happiest of the feelings in the body. So ऐसी वाली चीजों के लिए अगर कोई human beings जो हैं, कोई human persons, अगर ये खुद अपने में enhanced amount of the drugs जो है वो लेनी शुरू कर देते हैं, then that is called as a wrong usage of these drugs, and that is basically treated as to be the drug abuse. ठीक है, and the persons, those who use, they are called as the drug abusers, है ना. The users, those who are basically in the form of the drugs which are taken in the form of not the medicines but as for their extra you can say extra type of the requirements, and for that they become addicted also. ठीक है, एडिक्शंस हो जाता है. तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज. ठीक है, this is a age basically that of the adolescents. This was, I also discussed yesterday, that why we are studying about the drugs, how they are taken and everything, why we are teaching it formally in the class. Basically that is to become aware about their harms, that is the disadvantages, that how they are basically harming the human body, our body. ठीक है, तो उसके लिए हम इसको ये चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बना है. सेकेंडली, आपको इस स्टेज पे इसको क्यों समझाया जा रहा है? बिकॉज दिस इज द स्टेज ऑफ द एडोलेसेंस. ठीक है, especially the adolescents, they are more prone to take these drugs and more getting to have the particular you can say addiction to the drugs or to the alcohol at this age of the adolescence, because after this there will be the maturity age, and when the mind is mature enough, you can think of what is good and bad for you, for the society, for your family, you know, you can differentiate between these things, and you can also feel on or step forward for these requirements, what is required from you by your family, है ना. तो ये चीजें मैच्योर माइंड में आ सकती हैं, बट नॉट इन द माइंड दैट इज ऑफ द एडोलेसेंस. व्हाट इज देयर इज इन दिस एज यूजुअली, बिकॉज वी आर टू डील विद सो मच ऑफ द स्ट्रेस, है ना. द फर्स्ट स्ट्रेस इज दैट ऑफ योर स्टडीज इटसेल्फ, राइट. तो स्टडीज वाइज अगर हम बात करें, या फिर अगर हमारे माइंड में कुछ ऐसा स्ट्रेस है दैट इज आई वांट टू become the topper of the school of my medical stream at least, or a topper of a school, and I'm not working on it, I am just getting depressed and I am stressed, like मेरे को और मतलब और कुछ नहीं, बस एक स्ट्रेस कंडीशन मेरे माइंड में बनती जा रही. So these are what, these are the conditions, these are the states which will allow these particular drugs intake by that particular human person. If you do not have the control on your mind, that means the person is more likely to fall into this addiction, that is of either the alcohol addiction or the drug addiction. We call it as the drug abuse or the alcohol abuse. So these are the adolescents only, the phase of adolescence that which is more prone to the drug abuse or alcohol abuse, right? Leading to the addiction or dependency on this particular chemicals. एडिक्शन और डिपेंडेंसी, कल हमने बात करी थी कि एक डोपामिन नाम का जो केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, दिस इज ऑल्सो द वन विच इज बेसिकली गिविंग यू द मूड स्विंग्स, है ना, स्पेशली इन्वॉल्विंग फॉर द हैप्पी फीलिंग्स, जो आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी ब्रेन जो प्रोवाइड करती है
हैप्पीनेस वाला फीलिंग्स. सो ऐसा वाला फीलिंग्स अगर हम आर्टिफिशियली लेते हैं बाय द इनटेक ऑफ द मोर ऑफ द ड्रग्स, देन दैट इज वेरी गुड ना, अगर हम लोगों को हैप्पी वाला फीलिंग आता रहे हमेशा. सो दिस इज द हैप्पीनेस दैट विच कम्स फ्रॉम इनसाइड. देन वी फील लाइटर, वी फील बर्डन फ्री, वी फील स्ट्रेस फ्री, है ना. तो ऐसी कंडीशंस में जब ये पर्सन सोचता है कि नहीं, it is the only one and the easiest way to get this particular you can say feelings in the body, or to relieve the stress or to relieve the depression type of the conditions, the easiest way is to just get the drugs, है ना, and then have that particular lightness in your brain or in your body. So that is for 1 or 2 times it is okay, that when also used as in the form of medicines if provided by the doctors. But if you are taking it yourself and misusing it, the body of the person will become addicted. They start showing certain of the withdrawal syndromes even if you try to even if you try after some time. आपको लगे कि नहीं, जैसे अभी मेच्योर माइंड हो गया है एंड आप लोग को लगता है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग फॉर मी, फॉर माय फैमिली, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग रॉन्ग, मतलब मेरी बॉडी इफेक्ट हो रही है, इससे बैड की तरफ जा रही है ना. तो अगर इंसान सोचे भी कि नहीं लेना है, या बाय चांस अगर उसको ये नहीं मिलता है, then the particular body that is addicted to the particular drugs that shows these type of the symptoms that are the called as the withdrawal syndromes. ठीक है, withdrawal syndrome क्या है? That is the body that becomes quite very out of control types, है ना. Anxiety is to the highest level, right? Anger increases too much, shakiness of the body, right? Nausea conditions आनी शुरू हो जाती है. So these are the symptoms related to this withdrawal syndrome. Okay, when if in case the person is fully dependent upon the particular drug, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है, एडिक्शन बहुत ज्यादा लग चुकी है उसको. एडिक्शन होना मीन्स लत लग जाना, है ना. तो एडिक्शन अगर बहुत ज्यादा हो चुकी है, एंड इन केस द पर्सन डज नॉट गेट दिस, द सिंड्रोम्स दैट मेक्स द पर्सन टू टेक दैट अगेन. ठीक है, वो एडिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आपको नहीं भी ये ड्रग कभी ऐसा नहीं मिल पाया, नहीं अवेलेबल हो पाया, या आपने सोचा कि नहीं इसको छोड़ना है, तो बॉडी ही आपका साथ नहीं दे पाएगी. ठीक है, वो बॉडी इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका होता है कि वो साथ ही नहीं दे पाता, वो उसको खत्म करने में हेल्प ही नहीं कर पाती है, बॉडी ही नहीं हेल्प कर पाती, हमारा इनर सेल्फ ही नहीं हेल्प कर पाता. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द एडिक्शन or the dependency on these particular drugs, and this is because it is related to this symptoms or the syndromes also. This is only when the person is trying to get rid of it, right? But when taking these drugs, what can be the effects? What can be the effects of this drug abuse? What can be the effects of this getting of the drugs, taking of the drugs? हाँ जी, into our body क्या क्या effects हो सकते हैं ड्रग या अल्कोहल दोनों के. ठीक है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज दोनों इकट्ठे ही हैं यहाँ पे. अल्कोहलिक addiction is also quite bad for the body, right? So what can be the different effects? Under severity, the effects can be like the person can get into coma. The person can also get the respiratory problems that is related to the respiration. Higher effects like that of the difficulty, too much difficulty in breathing, that is too much asthmatic, highest level of the asthma you can call. Okay, so that is respiratory failures can also be there. Okay, respiratory failures can be there, right? Then there can also be the conditions that which may lead to severity are there, so that may lead to the heart's misfunctioning or the heart failure as well. If these drugs use, that is a drug abuse that is continued for a long period of time, the conditions can be as severe as this, right? It may also lead to the cerebral hemorrhage, मतलब brain hemorrhage हो जाएगा अगर इसमें बहुत ज्यादा यूजेस किया जाए ड्रग्स का या अल्कोहल का. ठीक है, so these are what alcohol also to some extent, that is because you may be listening to the foreign society or the foreign people that are the international जो दूसरी countries के जो लोग हैं, they are the alcohol drinkers, है ना. They are usually taking this alcohol, but that is also, again I'm saying, if used as in the form of a medicine, that is okay. But if it is taken
not just as in the form of a medicine. It is taken for the prolonged usage, for the prolonged times, for very, you can say, high amounts you are having these particular drugs or the alcohols, then that can lead to be the baddest conditions, that can be as bad as these conditions are there. ठीक है, ना सिर्फ ये इफेक्ट्स जो होते हैं, आप लोगों को पता कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी ड्रग्स यूजेज करते हैं, है ना, तो उनका टेस्ट भी जो है वो लिया जाता है बाद में, है ना, दे वर कॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर ड्रग फॉर देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग, है ना, स्पोर्ट्स पर्संस भी ये लेते हैं. सो दैट इज बेसिकली जस्ट टू have the aggressiveness in their body, just to be like very eager to have a stand of whatsoever the sports they are playing for that, right? But later on, when these your time period that for the sports or everything that is over, the person's body by that time that becomes addicted again. ठीक है, तो यहाँ पे एडिक्शन वापस फिर से हो जाएगा. By the time you need to avoid that, you won't be able to avoid it, है ना. ये सारे इतने सारे इफेक्ट्स हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. एडिक्शन, डिपेंडेंसी हो जाना, मतलब एक बॉडी पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुकी है, अब उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसकी डिपेंडेंसी को खत्म नहीं किया जा सकता. बॉडी अपने आप में ही कुछ सेल्फ बैड रिस्पॉन्सेज देनी शुरू कर देती है अगर ये नहीं मिल पाती है ड्रग्स या अल्कोहल ऑन टाइम. देन व्हाट हैपेंस दैट बॉडी इज सेल्फ अपने आप में ही वो रिफ्लेक्टिव हो गई है और वो खुद ही रिस्पॉन्स करने लग गई है कि अभी नहीं खत्म, मतलब अभी ये जो है डिपेंडेंसी है ये चलती रहेगी. ठीक है, इतने बड़े इम्पैक्ट्स हैं, इतना ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, बट स्टिल द पीपल दे आर टेकिंग, राइट. व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड इट, that why the people they become drug abusers, why the people they become so addicted to the drugs, why they start taking the drugs adolescents की एज में स्पेशली, क्यों ऐसा होता है कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिए हैं, what are the various reasons behind it. This is a very important question and it has been there since long back in your exams. हमेशा हर साल आता है ये पेपर में क्वेश्चन, ठीक है. सो क्या रीजंस हैं बिहाइंड द टेकिंग ऑफ द drugs? How can you prevent it? How can you control it? Okay, the reasons and its prevention, how to be prevented or the control, you can say. Okay, so what are the basic reasons behind it for taking the drugs? What are the basic reasons? Number one is the peer pressure, peer mates that are your classmates, है ना. So peer pressure is what? That is the pressure which is generated by your own classmates. If you are sitting in a class, every time you are looking to the person who is getting the first position, and you are trying hard, but again because of some of the you can say consequences, some of the bad things happen and you always lose that first position. Okay, and what happens is that there is a fear in your mind, that which is created as a pressure because of your presence of your friends. Okay, there is a fear in your mind that again I'll be working hard, again I'll be failing, again I won't be standing first, है ना. So that creates a pressure in your mind. So that is what, that is a peer pressure. आपके अपने दोस्तों से, आपकी अपनी, not the friend we can say, but your classmates, ठीक है, आपके उम्र के जो लोग हैं, हो सकता है आपकी क्लास में हो सकता है आपके ट्यूशन सेंटर्स पे हो सकता है आप किसी और को बहुत हाईली एक अच्छे, आपने एक आइडियल पर्सन बना के रखा है किसी को कि ये टॉपर है, ही इज नॉट जस्ट अ सिटी टॉपर, ही इज अ स्टेट टॉपर, है ना, यहाँ हमारा कंट्री टॉपर है कोई, हम उसके साथ अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं. तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग कि नो आई एम नॉट एट पार, मैं उसके साथ का नहीं, तो वो क्या है, एक आपके अंदर एक स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट करते रहता है. ठीक है, सो दैट इज अ पेयर प्रेशर, बट दैट शुड बी रिलीव्ड एट योर ओन लेवल, है ना. प्रिवेंशन कैसे करना है, आपको अपने आप में ही इसको कंट्रोल करना है. ओके है, यू वांट टू बीट हिम, यू वांट टू gain your first position, it is very very good you can say realization onto yourself कि आप फर्स्ट आना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उसको बीट करना चाहते हो, उसको पीछे करना चाहते हो. दैट इज अ गुड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट विद इन यू, बट दिस शुड नॉट गो टुवर्ड्स अ बैड यू कैन से थिंकिंग. ठीक है, ये अपने आप में कभी भी बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी से कम हूँ. ठीक है, आई एम सुपीरियर मोस्ट, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, आई एम द मोस्ट द गुड काइंड ऑफ अ पर्सन एंड आई एम द विनर, दैट्स इट. ठीक है, बाकी जो देखो हम लोगों ने करना है, जो हमने जितना पढ़ा है, हमारे उतने नंबर आ रहे हैं, देन इट इज ओके, है ना. वी शुड एक्सेप्ट एवरी कंडीशन देन, राइट. सेकेंड इज द नॉट जस्ट द पेयर प्रेशर बट द प्रेशर फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो, पेरेंटल प्रेशर, है ना.
तो पेयर प्रेशर तो एक चीज है कि आपके दोस्त लोगों की मेंटली आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ रही है, बट सेकंड इज द पेरेंटल प्रेशर. मोस्ट ऑफ अस वी से सबसे पहला पेरेंटल प्रेशर तो वहीं पड़ जाता है जहां हमें फील्ड अपने चॉइस की नहीं मिलती है ना. I wanted to take the non-medical, but I am now in medical. Why should I study? है ना? Why should I study? I will not study. I will leave the studies. मैंने पढ़ना छोड़ दिया. एक बार पेपर निकल गया, दूसरी बार का पेपर निकल गया, हर बार फेल हो रहे हैं. लोग सोच रहे हैं ये तो बच्चा ही बड़ा अच्छा था, इसको क्या हो गया. अब अंदर ही अंदर हमारे एक टेंशन क्रिएट होना शुरू हो गया कि पढ़ भी मैं नहीं रहा हूँ और रिजल्ट भी मुझे ही चाहिए, है ना. तो ये गलत है. हमने ब्लेम किसको किया? पेरेंट्स को. तो पेरेंटल प्रेशर इज ओके. पेरेंटल प्रेशर फिर से वही है. प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है कि पेरेंटल प्रेशर ओके है, लेकिन पेरेंट्स को भी इतना ज्यादा हाईली प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. दैट इज ऑन टू द पेरेंट्स कि पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चे को. ठीक है, इफ द पर्सन कैन डू मच बेटर इन द आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है, हो सकता है वो आर्ट्स लेके कहीं IAS IPS का कोई पेपर क्लियर कर दे, है ना. आपको तो बच्चे को अच्छा बनाना है. सो डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वी शुड सी. एंड सेकेंड, वी शुड एज अ चिल्ड्रन ऑल्सो, वी शुड ऑल्सो बिलीव कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए गलत डिसीजंस नहीं लेंगे. ठीक है, अगर किसी को किसी और फील्ड में डाल भी दिया है तो दैट इज बिकॉज मे बी द पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर समथिंग गुड फ्रॉम यू, है ना. अब आ ही गए हो तो पढ़ लो, ठीक है, मेडिकल ले ही लिया है तो पढ़ लो, ऐसा वाला कंडीशन. तो पढ़ के ही गुजारा है, ये है चीजें. आपको बहुत सारी ऐसी बातें करते होंगे पेरेंट्स. तो पेरेंट्स का एक अपना प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से शायद बच्चे जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस को होल्ड नहीं कर पाते एंड हेंस दे जस्ट यू कैन से डाइव इनटू दिस टेकिंग ऑफ द ड्रग्स, राइट. हाउ फर्दर कैन वी प्रिवेंट दिस? ये तो हो गई रीजंस हमारी, पेयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, ये हमारी रीजंस हैं, बेसिक रीजंस हैं. यहाँ और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. आपकी स्टडी प्रेशर है, आपके ऊपर एजुकेशनल प्रेशर है, ठीक है, और चीजें भी सारी. मतलब ये तो आपके इंटरनल प्रेशर्स अपने ही बिल्ड किए हुए हैं, मतलब जो भी रीजंस हैं पर अपने ही बिल्ड किए हुए हैं. अब अगर हमें इनको प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंशन कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा. पहले तो हमें ये प्रेशर्स खत्म करनी है ना. पेयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, इनको हमें डिलीट करवाना पड़ेगा. या तो पेरेंट्स को, या तो फ्रेंड्स को, या अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा कि हमें ये एज अ स्ट्रेस कंडीशन नहीं लेना, है ना. नाउ व्हाट यू पीपल आर आल्सो डूइंग, you are just running after your competitive exams and classes, everything. That's very good. You people are going for that. You are practicing for that. You are having the good knowledge. You are attaining good knowledge out of the NCERT knowledge. And then you are getting evaluated with the test and everything. You have a very busy schedule. But that is okay. That is not just with you people. That is with many students more. Those also, those who are going to become India topper #1, all India rank 1 लेने वाले हैं, उनके साथ भी है. आपके साथ तो अब इस साल या पिछले साल से शुरू हुआ है, वो तो पिछले 4 सालों से ये तैयारियां कर रहे होंगे, है कि नहीं. द मोर दे आर वर्किंग हार्ड, द मोर दे विल अचीव, राइट. फ्रॉम व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस, वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि हमने पढ़ाई करनी कब शुरू की. अगर मेरे को नीट का एग्जाम देना है और मेरे को 12वीं में जाग आई है कि 12th में जाकर मैं सोचूं कि मुझे नीट का एग्जाम देना, मुझे तैयारी करनी है, विल आई बी एबल टू डू दैट? नो. I won't compete with those students, those who are working still 8th standard or 9th standard, है ना. सो ये चीजें क्या हैं? ये हमारे अपनी थिंकिंग्स हैं. हम चाहते हैं आज ही शुरू करें और टॉपर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता. हमने अपने लिए ही अपने मेंटल लेवल पे प्रेशर्स जनरेट किए. तो सबसे पहला तो आपको ये प्रेशर्स को रिलीव करना पड़ेगा. यू हैव टू फर्स्ट रियलाइज दीज प्रेशर्स एंड देन यू हैव टू relieve these pressures from your mind, but not taking this particular way. That is not through the way of the drugs, just by the thinking, managing, and that's it. Time management is the best solution for all these problems. Okay. Second can be the counseling part. Counseling is usually done by the parents or by the school, है ना. Counseling जो है, एक counselors available होते हैं स्कूल में, those who can listen to you, even your teachers, all the subject teachers, they are also acting as a very good counselors for the especially the adolescent people. The ones, those who have entered into the 11th or in 10th, 11th and 12th students, especially the teachers, they always help and counsel the students, right. So that is, counseling should be done very appropriately so that the child should not be affected because of these conditions and dive into the drugs, and taking of the drugs. This is not a good choice, right. The person should be having the proper balanced mind, and that can be only achieved by the counseling, by providing more of the you can say examples of the famous personalities
those who might have been more burdened than you, है ना. तो ये सारी चीजों के साथ हम लोग कोरिलेट करके यहाँ पे एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं. ठीक है. देन वही आ जाता है कि अगर आपको प्रेशर रिलीव करना है, यू हैव टू लुक ऑन टू फॉर दिस parental support, from your friends support. If your classmates they are looking on to a person who is not doing good, actually drugs का एक और इफेक्ट जब हमने लिखे थे तो वहां पे एक इफेक्ट ये भी आते हैं हमारे कि अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर ड्रग्स लेने शुरू हो जाओ तो उसमें क्या कह रहता है कि द पर्सन दैट डज नॉट प्रोवाइड द गुड रिजल्ट्स, है ना. एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो जाती है, स्कूल कॉलेज से एब्सेंट रहना शुरू हो जाते हैं. तो ये भी एक तरह के इफेक्ट्स हैं जो नजर आते हैं फॉर द ड्रग अब्यूजर्स एट द एडोलेसेंट एज, अर्ली एज. ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ हम नोटिस करते हैं एज बीइंग अ क्लासमेट, इट्स आर आल्सो द ड्यूटी दैट वी शुड काउंसल द पर्टिकुलर चाइल्ड, जो भी आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा है, हमें उससे पूछना चाहिए व्हाट इज द प्रॉब्लम टू यू एंड व्हाई यू आर लाइक बिहेविंग दिस, कि आप तो बहुत अच्छे होते थे, अभी आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई है. इट इज नथिंग बैड इन इट, है ना. ये ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है जी, मैं आगे निकल रहा हूँ तो वो पीछे जा रहा है तो जाता है, मुझे तो आगे निकलने का मौका मिल रहा है. नो डाउट ये अच्छी बात है, बट स्टिल हमें दूसरों को काउंसल भी करना चाहिए. मतलब हमें सपोर्ट जो है वो अपने फ्रेंड्स से और अपने पेरेंट्स से भी लेना चाहिए. सो सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स. ठीक है. अपने जो एज मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, इन लोगों से सपोर्ट भी जो है वो भी मिलना चाहिए. ठीक है. देन प्रिवेंशन तब लेंगे हम खुद भी जब हम खुद रियलाइज करेंगे कि इसके डेंजर साइंस क्या हैं. ठीक है. सो दैट इज हमें डेंजर साइंस जरूर माइंड में रखने चाहिए. लुकिंग फॉर डेंजर साइंस. अगर हमें यही नहीं पता कि ड्रग्स लेने से हम 5 साल 6 साल 10 साल ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स के साथ जिंदा रह लेंगे और अच्छी हैप्पी मूड हमने ले लिया है, एक अच्छी मतलब अच्छी लाइफ तो खैर नहीं है, वो पर्सन इज ऑलवेज एडिक्टेड एंड द पर्सन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली, दैट इज वो आइसोलेटेड ही रहता है ना. तो देयर इज नथिंग गुड इन इट. ठीक है. तो डेंजर साइन तो यही है सबसे पहले कि जितने साल वो बंदा जिंदा है उतने साल भी वो अपनी लाइफ जी नहीं पाया और आफ्टर दैट लाइफ तो शॉर्टन हो ही गई है ना, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स जो भी हमने यहाँ पे लिखे थे, हार्ट फेलियर है, हेमरेज है. तो ये ऐसी कंडीशंस अगर होगी तो क्या जिंदगी रह जाएगी. सो दे आर द डेंजर साइंस. अगर हमें डेंजर साइंस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, देन वी शुड हैव अ लुक ऑन फर्स्ट दैट व्हाट कैन बी द डेंजरस इंपैक्ट्स फॉर इफ द पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग द ड्रग्स टू द अनलिमिटेड अमाउंट्स. ठीक है. टू द हायर डोजेस. ठीक है. तो डेंजर साइंस जरूर देख लेने चाहिए. एंड अबव ऑल अगर और कुछ नहीं, मतलब एक पर्सन अगर अब्यूजर बन ही चुका है या आप अपनी स्ट्रेस या डिप्रेशन को रिलीव नहीं कर पा रहे हो विदाउट थिंकिंग ऑफ द एनी अदर वे अदर देन द ड्रग्स, टेकिंग ऑफ द ड्रग्स, देन द पर्सन शुड गो फॉर द मेडिकल हेल्प एज वेल. ठीक है. डिप्रेशन है, स्ट्रेस है और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, सिर्फ ड्रग्स लेना है, तो उसके लिए पहले किसी फिजिशियंस से, किसी काउंसलर्स से, किसी मेडिकल पर्सन से बात कर लेनी चाहिए. दोज हु आर रिलेटेड विद दिस डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, तो उनसे बात कर लेनी चाहिए. हो सकता है आपको कोई सेकंड वे आउट मिल जाए, हो सकता है मेडिसिन मिल जाए, हो सकता है आपको कोई मेडिटेशंस वगैरह बता दी जाए जिसके साथ हो सकता है आप रिलीव्ड फील करो. सो ये चीजें जो हैं दैट कैन बी बेसिकली यूज्ड एज फॉर द प्रिवेंशंस अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर reasons. That whatsoever the reasons are, the person should not have just one way out, that is the drugs. There are many other ways, just you have to look for that, right? So the person should not become a drug abuser, right? Especially at the age of adolescence. Okay. So this was the last topic of your this chapter. So we are finally done with the chapter that is human health and diseases. We are left with 2 chapters, that of biotechnology. So any question to anyone from this